everyone. Welcome to the online classes of Cerebral Institute, Sparking Imaginative Learning. Students, first of all, though, I would like to thank my all subscribers, my all viewers, my students who have given this tremendous response to my Cerebral Institute channel. I'm so glad and I'm so blessed to have you all on my channel. So, after a long break, I am here back again with so many educational videos one by one. Okay, so let's start our today's video. The today's topic is very important from the perspective of accounting. Why it is so important? Because this is the basics of accounting, right? All the accounting statements, whether it is your trading and profit and loss account, or your income and expenditure statement, or your balance sheet, all the final accounts preparation is totally dependent on these principles and concepts. Okay, so one by one we will discuss all these. Okay, so accounting principles consist of two categories. Okay, first category consists of accounting concepts and second category consists of accounting conventions, right? So what comes in accounting concepts? There are at least 10 concepts like money measurement, business entity, going concern, cost, dual aspect, accounting period, matching, realization, objectivity and accrual concept. Okay, and if we talk about the conventions, there are 4 conventions of accounting, namely disclosure, consistency, conservatism and materiality. Okay, we will discuss all these concepts one by one. So first of all, we will discuss the meanings of accounting concept and accounting convention. Okay, so as you can see on your screen that I have prepared a comparison between these two terms. Okay, so first of all we will understand the meaning क्या है accounting concept का? Accounting concept refers to the rules of accounting. Class, pay attention, rules of accounting. If we talk about the rules of accounting, that means we are referring the accounting concepts, right? So these concepts are taken into consideration while maintaining the final accounts. Okay, means all the day-to-day transactions are recorded in the books of accounts by taking these accounting concepts consideration, right? And if we talk about the account conventions क्या होती हैं? It implies the customs and practices, okay, that are widely accepted by the accounting bodies and are adopted by the firm to work as a guide in the preparation of final accounts. Means accounting conventions are the customs and the practices. Okay, these are not rules, but these are widely accepted customs and practices of the accounting systems. Okay, and these are very common practices and these are taken into consideration while the preparation of final accounts. Now the comparison in between those is that accounting concepts are taken into consideration while maintaining of the accounts, day to day ट्रांजैक्शंस. ओके, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स में हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट. बट अगर हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, तो वो जो है हम यूज़ करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट्स. ओके, सो व्हाट इज़ इट? अकाउंटिंग कंसेप्ट इज़ अ थ्योरी कंसेप्ट. Okay, but accounting convention is a method or procedure. When we prepare all the financial statements, we take the accounting conventions into deep consideration. Why? Because these are the procedures or method for preparing the final accounts. Okay, so accounting concepts are set by accounting bodies and accounting conventions are set by the common accounting practices that are widely accepted throughout the world. Okay, now accounting concept is concerned with maintenance of accounts,
ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर लिंक्ड विद योर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट्स, राइट। नाउ बायसनेस, अब बायसनेस का मतलब क्या होता है, व्हेन वी जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, व्हेन वी चेंज द ओरिजिनलिटी ऑफ some accounting statements, right? So accounting concepts में biasness is not possible. We cannot be biased, okay? We cannot be manipulate the accounting transactions as our convenience, right? But in the accounting conventions biasness can be possible, okay? Because हम जो है अपने अकाउंटिंग जो प्रेपरेशन करते हैं अकाउंटिंग आप कह सकते हो स्टेटमेंट्स की, उसमें हम कुछ चेंजेस, कुछ बायसनेस, ये सब चीज़ें कर सकते हैं एज़ पर आवर कन्वीनियंस। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी मीन्स दैट you are an artificial person, okay, and you have your separate legal entity, okay। मतलब क्या है एंटिटी कॉन्सेप्ट का? इट इम्प्लाइज दैट बिजनेस यूनिट और अ कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट and having a separate legal entity distinct from its proprietors, means business can be differentiated with the property of the proprietors, right? बिजनेस की प्रॉपर्टी अलग है, प्रोप्राइटर्स की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। अगर हम बोलें कि बिज़नेस जो है वो प्रोप्राइटर्स के अंडर होता है, या जो कंपनी है, कोई फर्म है, उसके ऊपर प्रोप्राइटर्स का राइट है, वो प्रोप्राइटर्स के अंडर है, तो ऐसा नहीं होता। बिज़नेस और कंपनी की एक अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उनकी, ठीक है, और वो किसी के साथ भी लिंक्ड नहीं होते। प्रोप्राइटर्स का हमारे कंपनी के ऊपर या बिज़नेस के ऊपर कोई भी राइट नहीं होता। प्रोप्राइटर्स जो हैं अपने बेनिफिट के लिए कंपनी से चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते, या कंपनी के जो इनकम है प्रोप्राइटर्स अपने कन्वीनियंस के लिए या अपने पर्सनल खर्चे के लिए कंपनी से पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब ये जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है किन किन केसों में ये नहीं भी होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट द पार्टनरशिप बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, तो यहाँ पे जो लीगल एंटिटी है वो प्रोप्राइटर से अलग नहीं होगी, ठीक है। सो दिस एंटिटी कंसेप्ट इज मेनली लिंक्ड विद योर फर्म, विद योर कंपनी एंड विद योर business that are under the Companies Act, okay। Second one is dual aspect concept। अब dual means टू, ठीक है। अब dual aspect concept में क्या है, आपके हर एक एक्सपेंडिचर के लिए बिल्कुल आपकी इनकम का होना भी बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर आपकी डेबिट साइड है तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट साइड भी होगी, ओके। Every debit has a corresponding credit and every credit has a corresponding debit, ठीक है। हमें इतना पता है that accounting system is a double entry system, okay। There is every debit, ठीक है, in respect of the every credit, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो your liabilities should be equal to your assets, your income should be equal to your expenses, right। तो जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी हम अपनी मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स को, उसमें डुअलिटी जो है वो होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का क्या मतलब है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही वी हैव टू मेंटेन ऑल द अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, राइट। नॉर्मली अगर हम बात करें, कोई भी कंपनी है, बिजनेस है, फर्म है या पार्टनरशिप है, या अगर आप सोल प्रोप्राइटर भी हो किसी बिजनेस के, ठीक है, उसमें आप हमेशा 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड लेते हो कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो कब बनेंगी, आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना अकाउंटिंग पीरियड जो है उसको मेंटेन कर लेते हैं
वैसे इफ़ यू टॉक अबाउट अगर हम जनरली बात करें तो हमेशा अप्रैल टू मार्च हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग मतलब चलते रहना नॉन स्टॉप, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस हम कह सकते हैं। सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, हम when we start a business we have this assumption that this business can be last up to a long period of time, ठीक है। जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हम ये नहीं सोचते कि हम जो है बिज़नेस 1 साल के लिए या 3 महीने के लिए होगा या 2 साल के लिए होगा, ठीक है। हम कभी भी अपने बिज़नेस का एंड पॉइंट डिसाइड नहीं करते, हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो हमारा बिज़नेस है वो थ्रू आउट लाइफ बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक वो चलता रहेगा, ठीक है। सो वाइल मेंटेनिंग द अकाउंट्स while maintaining the statements of accounting we take this going concern concept, that is the accounting, the business or the firm or the partnership, this will long last up to a infinite period of time, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो आप द प्राइस यू हैव पेड फॉर परचेजिंग समथिंग, ठीक है। कॉस्ट वही होती है ना, सपोज़ आपने बाज़ार में गए, आपने पेन ख़रीदा, ठीक है, आपने 10 रुपीज़ दे के 10 रुपीज़ वाला पेन ख़रीदा, तो आपके लिए उस पेन की कॉस्ट क्या होगी, 10 रुपीज़ होगी, बिकॉज 10 रुपीज़ दे के आपने पेन को परचेज़ किया, ठीक है। सो यहाँ पे भी यही बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपने अपनी कोई भी एसेट है, ठीक है, उसको आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो आप वही प्राइस से लेके वही प्राइस अपने बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन करेंगे जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है उस एसेट को परचेज़ करने की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ यू हैव परचेज्ड अ बिल्डिंग, ठीक है, यू हैव परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर योर बिजनेस वर्थ ₹25 lakhs, ठीक है। अब यू विल रिकॉर्ड दैट बिल्डिंग परचेज विथ 25 लाख ओनली, ठीक है। आप उसको ज़्यादा नहीं शो कर सकते, ना ही आप उसको कम शो कर सकते हो। आपकी मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू फ्यूचर में कम भी हो सकती है, फ्यूचर में ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन यू हैव टू मेंटेन द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ओके। सो एक बार पढ़ लेते हैं। Cost concept implies that assets acquired are recorded in the accounting books at the cost or the price for paid for acquiring it, ठीक है। जिस प्राइस से आपने उस एसेट को परचेज़ किया है, आप उसी प्राइस से अपने बुक ऑफ अकाउंट में उस एसेट को रिकॉर्ड करो, ठीक है। यू विल नॉट कंसिडर द मार्केट वैल्यू, यू विल कंसिडर द परचेज वैल्यू ऑफ दैट एसेट, क्लियर। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब ये जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है वो क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शंस जाएंगी जिसको आप मॉनेटरी टर्म में जिसको जो कि मॉनेटरी टर्म में, ठीक है, ओके। यू विल रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर इन द नेचर ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड, एक्सप्रेस्ड एंड रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम उन ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करेंगे, ठीक है, जो कि हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते या जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, उनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट, मैच क्या करना होता है, ठीक है, वी हैव टू मैच ए विद बी, ठीक है। सो मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग में, ये वही कंसेप्ट है जो आपने डुअलिटी कंसेप्ट में किया है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में किया है। योर इनकम शुड बी इक्वल टू योर एक्सपेंसेस, योर डेबिट साइड शुड बी मैच्ड विद योर क्रेडिट साइड, ठीक है। सिंपल है मैचिंग कंसेप्ट कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो मैच करने चाहिए आपके इनकम से, आपकी डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू योर क्रेडिट साइड,
ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर ये दो साइड्स मैच नहीं होंगी तो आपकी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो गलत हो जाएंगी। और कभी कभार हम क्या करते हैं, इन दोनों को मैच करने के लिए हम बैलेंसिंग फिगर भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइज़ करना। ठीक है, कि एक्चुअल रियलाइज़ का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ को एक्चुअल में रियलाइज़ किया। ठीक है, वो इमेजिनरी नहीं है, वो एक्चुअल में चीज़ हुई है या हो चुकी है। ठीक है, तो रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है, ये बेस्ड है आपके रेवेन्यू के ऊपर। अब बच्चे एक बात आपने यहाँ पे समझनी है, रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू होता है अगर आपने कोई भी एसेट को सेल किया है, ठीक है, मतलब कोई भी आप टेंजिबल थिंग है उसको सेल किया है या उसको रेंट आउट किया है, ठीक है, उसके बदले में जो आपको पैसा आ रहा है वो होगा आपका रेवेन्यू। ठीक है, कुछ भी सेल किया है, सेलिंग ऑफ एनीथिंग, दैट इनकम यू रिसीव ना इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। सो रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या है, हम रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, इनफ्लो ऑफ कैश, receivables and other consideration arising in course of the sale of the goods or rendering of services from the holding of an assets। ठीक है, कुछ भी हम सेल आउट कर रहे हैं या कोई भी एसेट को हम रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है, जो भी इनफ्लो आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। ठीक है, और उसी को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, इफ़ नो सेल टेक प्लेस नो रेवेन्यू इज़ कंसिडर्ड। ठीक है, अगर कोई रेवेन्यू, अगर आपने कुछ नहीं सेल किया, ठीक है, तो आपके पास कोई भी रेवेन्यू नहीं आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज़ अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है। अक्रूवल कंसेप्ट में एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि कुछ भी ऐसी कोई इनकम है जो आपने फ्यूचर में पे करनी है, या ऐसी कोई इनकम है जो आपने फ्यूचर में लेनी है, या ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जो आपने फ्यूचर में पे करना है, फ्यूचरिस्टिक कोई भी ट्रांजैक्शन है, उसको आप अपने करंट बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करोगे। गेटिंग माई पॉइंट। Any futuristic activity, any futuristic transaction should not be recorded in your current financial statements। ठीक है, सपोज अगर आपने इफ़ यू हैव टू पे अ रेंट, ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है और आपने 2 साल बाद उस बिल्डिंग का रेंट पे करना है, तो 2 साल वाली ट्रांजैक्शन आप अपने करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करोगे। जो एक्चुअल में चीज़ें हैपन हुई हैं, जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुए हैं आपके इस अकाउंटिंग पीरियड में, या जो एक्चुअल में आपने इनकम रिसीव की है, बस वही एक्चुअल रिसीविंग, एक्चुअल एक्सपेंसिंग ही आपके अकाउंटिंग पीरियड में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज रूपी वैल्यू कंसेप्ट। रूपी वैल्यू कंसेप्ट का क्या मतलब होता है कि आपने रूपी की वैल्यू को कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर हम बात करें 100 रुपीज़ की, ठीक है, तो 100 रुपीज़ की आज के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम आज से 20-25 साल पीछे जाएं तो 100 रुपीज़ की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, ये क्या है आपका रूपी वैल्यू कॉन्सेप्ट, मतलब आपने रूपी की वैल्यू को कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, आपका मार्केट वैल्यू चाहे प्रेजेंट ईयर में कितना भी बढ़ चुका हो, लेकिन आपने रूपी की जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको ही आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट द वैल्यू ऑफ रूपी इज़ कांस्टेंट। ठीक है, कि जो भी आपकी रूपी की वैल्यू है वो आपने कांस्टेंट मान लेनी है। ठीक है, वो फिक्स्ड मान लेनी है। इन फैक्ट ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स द वैल्यू ऑफ रूपी विल बी डिक्लाइनिंग। ठीक है, ऐसा होगा कि कभी इन्फ्लेशन हो जाएगी, कभी डिफ्लेशन हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपकी जो रूपी की वैल्यू है वो डिक्लाइन कर जाती है। डिफ्लेशन में क्या होता है, ऑपोजिट। ठीक है,
अंडर दिस सिचुएशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, अगर ऐसी कोई इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशन आ गई है आपकी इकोनॉमी में, तो आप उसको इग्नोर करोगे। आप अपने बुक ऑफ अकाउंट्स उसी कॉस्ट के ऊपर या उसी वैल्यू की जो रुपये की वैल्यू है उसी को लेके, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेके, ठीक है, आप उन ट्रांजैक्शंस को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट कंसिडरिंग द डिक्लाइनिंग वैल्यू ऑफ द रुपी। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। रुपी वैल्यू कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वी हैव टू फिक्स द वैल्यू ऑफ अ रुपी, वैल्यू ऑफ द रुपी इज़ कांस्टेंट। अब चाहे फ्यूचर में इन्फ्लेशन हो रही है या डिफ्लेशन हो रही है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। यू विल इग्नोर ऑल दिस इकोनॉमिकल सिचुएशंस, और आप जो भी अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस क्या होती थी, मैंने आपको पहले बताया था, customs and practices that are widely accepted by the world। ठीक है, ओके। फर्स्ट कन्वेंशन है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या होता है? डिस्क्लोज करना। ठीक है, मतलब आपके अंदर कोई भी सीक्रेट है, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो, आप उसको सबके सामने डिस्क्लोज कर देते हो, सबके सामने दिखा देते हो, ले आते हो। ठीक है, सो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? जो भी आप फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी आपकी डेली की ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ भी है अकाउंटिंग प्रोसेस में, ठीक है, आप कुछ भी हिडन फैक्टर्स में नहीं होगा, आप कुछ भी दुनिया से नहीं छुपाओगे, या आप कुछ भी अपने शेयर होल्डर्स से या अपने वेंडर्स से, ठीक है, या अपने डेटर्स से, अपने क्रेडिटर्स से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन बिजनेस की अकाउंटिंग प्रोसेस की छुपाओगे नहीं, आप सब कुछ उसको डिस्क्लोज़ कर दोगे। क्यों, वाई हम ये कन्वेंशन कंसीडर करते हैं? क्योंकि हर एक पर्सन जो कंपनी का जो कहीं ना कहीं कंपनी के साथ लिंक्ड है, ये उसका राइट है कि वो कंपनी के हर एक डिसीजन में या हर एक फाइनेंशियल, जो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनी की, वो उसको देखे, उसको एनालाइज करे। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हो जर्नल प्रैक्टिस है that we should disclose each and every aspect of our financial statements। okay, next is convention of conservatism। conservatism का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अगर कोई भी अनसर्टेनिटी है, आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ भी ऐसी अनसर्टेनिटी हैपन हो सकती है, ठीक है, तो while preparing the final account statements आप किसी भी अनसर्टेनिटी को इग्नोर नहीं करोगे, आप अनसर्टेनिटीज़ को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड करोगे। अब अनसर्टेनिटीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स। ठीक है, आपने किसी भी डेटर को लोन दिया, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप डाउटफुल हो कि कब, पता नहीं मुझे ये पैसा वापस मिलेगा या नहीं। ठीक है, यू आर अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर, यू आर अनसर्टेन अबाउट दैट डेटर। ओके, सो आप उसको डाउटफुल डेट को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। वाई? बिकॉज यू हैव सम इंट्यूशन ऑफ द अनसर्टेनिटी। ठीक है, या आपको लगता है कि जैसे लॉस बाय फायर, ठीक है, आपको लगता है कि कल को आपके गुड्स में, ठीक है, आपके गुड्स ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू लॉस बाय फायर। ठीक है, दीज आर द अनसर्टेनिटीज़, दीज आर द अजम्पशंस दैट यू हैव। ठीक है, तो जो भी अनसर्टेनिटी आपको लगती है आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कि आप कंसिस्टेंट हो, आप फिक्स्ड हो, आप चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी का, वो क्या कहता है? इसमें ये है, पढ़ लेते हैं। द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी इम्प्लाइज दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड मेथड्स शुड रिमेन अनचेंज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। ठीक है, जो भी हम प्रोसीजर लगा के अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हैं,
जो भी मेथड लगा के, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं, जो भी मेथड्स हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसीजर्स हम अप्लाई कर रहे हैं अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, वो हम थ्रू आउट द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग कांस्टेंट रखेंगे, कंसिस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम जो है एक अकाउंटिंग पीरियड में डिफरेंट मेथड लगा के डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। नो, दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, एक ही मेथड पकड़ो, एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी पकड़ो और उसी को पकड़ के आपने पूरे अपने जितने भी आपके अकाउंटिंग पीरियड है, सेम कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स को बनाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड करोगे जिनका बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, जिन ट्रांजैक्शंस को आपको लगता है कि ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं, ठीक है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके बिजनेस के लिए, ठीक है, स्मॉल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जिनका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा आपके बिजनेस के ऊपर या अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर, ठीक है, जिनको आप इजीली इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, ऐसी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको चाहे आप इग्नोर कर सकते हो, स्मॉल ट्रांजैक्शंस को, लेकिन जिन ट्रांजैक्शंस का आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर या आपके बिजनेस के ऊपर काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट है, उन ट्रांजैक्शंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन ट्रांजैक्शंस को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड ज़रूर करोगे। ठीक है, आई होप कि आपको सभी कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई है, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, या आप मुझसे ऐसे ही बात करना चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने डाउट्स पूछें, अपने क्वेरीज पूछें, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर queries and all, and thank you so much for watching, and bye bye.